Hello everybody, welcome to Chem Sorcerer. This is your tutor Shiv-Prasad Patil. I'm first of all I'm really sorry for discontinuing the daily dose of JW chemistry series. Actually I had some work and I was busy in that, so I couldn't upload the videos. But don't worry, I will be uploading all those videos from November. Daily dose I will be continuing again from November part, and this video will be a series, or you can say this video lecture will be of about completion of organic chemistry. Okay, complete organic chemistry from nomenclature to all those reactions and all those everything whatever is there in your organic chemistry part. Okay, no need to worry. If you have any doubt, let me know in the comment section. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें छोटी छोटी चीज़ें समझने में मुश्किल होती हैं, या फिर शायद वो डाउट्स नहीं पूछ पाते, बट ऐसी मतलब मैं जानता हूँ वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं. अगर वो भूल गया, आप मुझे बता दीजिए. टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यू कैन मेल मी. अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो यू कैन जस्ट मेल मी. डोंट वरी, द सॉर्सरर इज हियर and we will solve all those things. Okay, and one more thing, I am gonna change the name of my channel from Chem Sorcerer to Chem Wizard. ओके, द रीज़न इज़ बहुत सारे लोग सॉर्सरर को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, एंड इवन इफ आई टेल देम सॉर्सरर दे आर नॉट एबल टू गेट दैट. सो आई वाज थिंकिंग टू चेंज इट टू केम विजार्ड. ओके, आई एम वर्किंग ऑन इट राइट नाउ, लोगो एंड एवरीथिंग. सो होप यू लाइक देम. बताइए अगर आपको कोई और, इफ यू वांट टू सजेस्ट सम अदर नेम्स, लेट मी नो. ओके, सो कमिंग टू द पार्ट. ठीक है, देखिए व्हाई दिस क्लासिफिकेशंस, नेमिंग एंड ऑल दोस क्यों इंपॉर्टेंट है. देखिए, सिंपल सी बात है, जब भी कोई दुनिया में पैदा होता है तो उसका नामकरण किया जाता है. ठीक है, सो वी यूजुअली नेम आवर न्यू बॉर्न बेबीज. सो हियर ऑल्सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेन एवर न्यू कंपाउंड्स आर लाइक identified or like synthesized, so they need to be given some name so that you can call them कि ठीक है, if you are doing some reactions, you can name that on a paper, you can publish, so that each and everyone can understand, or each and everyone can read what all the reactions are present. अगर समझ लीजिए ऐसे ही आपने बस A B C दे दिया, तो there are a lot of what compounds, you can't just name A B C and 1 2 3 all those things. So to drop that confusion, there is a committee, international committee, you can say IUPAC. Okay, what it does is, what it signifies is International Union of Pure and Applied Chemistry. Okay, it is the one of the main branch of chemistry which have set some rules for the nomenclature of these organic compounds. ठीक है, so before going to the nomenclature, let us study what type of organic compounds are present. ठीक है, कौन से टाइप के organic compounds present होते हैं. So there are different classifications. ठीक है, based on those classifications there are some three to four classifications. ठीक है, मैं बताऊंगा वो क्या क्या होते हैं. तो first classification is based on structure. ठीक है, there will be some structures. Okay, each and every molecule has some structure. So based on the type of structure, they are classified as open chain, or it is also called as acyclic, or closed chain, which is also called as cyclic. ठीक है, now what are open chain? Open chain मतलब which are in which both the ends of a compound are open, मतलब joint नहीं है. For example, you can take pentane. ठीक है, it is a pentane. Pentane मतलब 5 मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बन CH3, CH2, 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 again CH3. So it is a open chain. You can see यहाँ पे these are the two ends. Okay, wait a second. These are the two ends. Okay, this one is the end, another one, and this one is another end. ठीक है, ये दो एंड है, ये दोनों एंड एक दूसरे से जुड़े नहीं है. ओके, ओपन है. सो देयरफॉर such compounds are called as acyclic or open chain cycles. Closed chain cycles. Closed chain cycles are those cycles in which it is ring-like structure are present. For example, benzene, or you can say a cyclic hexane. Okay, or you can say cyclopentane, जिसमें ना ऐसे रिंग टाइप सा स्ट्रक्चर बनता हो. रिंग मतलब जरूरी नहीं है कि सब गोली हो, इट कैन बी ऑफ एनी पॉलीगोनल शेप एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, सो जहाँ पे ऐसा रिंग क्लोज्ड स्ट्रक्चर दिखता है, वहाँ पे हम उनको क्लोज्ड चेन बोलते हैं, या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज विथ एरोमेटिक एंड साइक्लिक. ठीक है, साइक्लिक इज डिफरेंट, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डिफरेंट. ठीक है, एरोमेटिक के अलग कुछ रूल्स हैं जो आईयूपैक ने फिर बताएं. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, साइक्लिक इज डिफरेंट. ठीक है, you can say that all aromatic compounds are cyclic, but all cyclic compounds are not aromatic. Okay, so all aromatic compounds are cyclic, but
रिवर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स आर नॉट एरोमेटिक बट ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक, दिस इज वन थिंग। सो एग्जांपल तो मैंने बता दिया इसका, ओपन चेन के लिए आप पेंटेन ले लो, कोई भी मोर देन टू और थ्री, यू कैन टेक मोर देन थ्री मेंबर कंटेनिंग कार्बन्स कैन बी ओपन चेन। ओके, क्लोज चेन में भी हो सकता है आपका, ये हो गया प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन हो गया, देन इट कैन बी साइक्लोब्यूटेन हो गया, इट कैन बी साइक्लोपेंटेन एज आई सेड। सो दीज आर द थिंग्स। Now, homocyclic and heterocyclic. Again, this is another type of classification. इसमें homocyclic मतलब those compounds which do not contain any heteroatom. Now, what are heteroatoms? In organic chemistry, apart from carbon and hydrogen, oxygen, okay, these are called as hydrocarbons. Sorry, carbon and hydrogens are called as hydrocarbons. Whereas, apart from these carbon and hydrogen, so we also tend to see oxygen, nitrogen, and sulfur. ठीक है, ये भी present होते हैं. So these three atoms are called as heteroatoms. These are called as heteroatoms. Now why hetero एक नाम दिया रखा है, ठीक है, hetero apart from carbon and hydrogen, अगर ये present है तो you can say that these are the hetero compounds. Now how can you distinguish homocyclic and heterocyclic? Let us see what is homocyclic. Homocyclic means any cyclic compound. Okay, first it should be cyclic, and homo means it should contain only carbon in its structure. Okay, सिर्फ कार्बन मतलब समझ लीजिए यहाँ पे कोई बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन में हर एक कार्बन आपका क्या है, बेंजीन में हर एक जो स्ट्रक्चर जो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, दैट इज योर कार्बन ओनली। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। सो दिस मीन्स होमो। होमो मतलब एक ही टाइप का है, ठीक है। अगर हेटेरो मतलब इट इज अ मिक्सचर, हेटेरो मीन्स यू कैन से इट्स अ मिक्सचर। सो व्हाट दैट कैन मिक्सचर बी, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग। फॉर एग्जांपल I can take this epoxide, ठीक है, this is an epoxide in which one of the carbon is being replaced by oxygen, or you can take nitrogen, okay, or you can take sulfur, anything, or you can take any pyridine molecule, ठीक है, this is your pyridine molecule and all those things. So one of the carbon is being replaced by nitrogen. So these are the थिंग्स। मतलब हेटेरो मतलब वहाँ पे मिक्सचर होगा किसका, अपार्ट फ्रॉम कार्बन एनी अदर एटम। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका कार्बन होता है, सॉरी आपका ऑक्सीजन होगा, या फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, या फिर सल्फर होगा। सो इफ दीज थ्री एटम्स, एनी वन ऑफ दीज थ्री एटम्स इज प्रेजेंट इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ organic compound, then we can say that it is a heterocyclic compound. Remember that hetero means apart from carbon, any replacement of any one of the carbon from a cyclic compound, you can say it as a heterocyclic compound. Now classification of carbon and hydrogen atoms, ठीक है। अब ये तो हो गया कि हमने हेटेरोसाइक्लिक पढ़ लिया, होमोसाइक्लिक पढ़ लिया। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है। अगर आप असाइक्लिक कार्बन को देखें, असाइक्लिक मतलब आपके जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, उनमें क्या होगा, एल्काइल होगा, एल्किनाइल होगा, एल्कानाइल होगा। नाउ व्हाट डज दिस एल्काइल, एल्किनाइल एंड एल्कानाइल मीन्स? सो दीज थ्री थिंग्स मीन दैट एल्काइल मीन्स आपका सिंपल एल्केन, ओके, आपने 10th में पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, व्हाट एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो यू नो ऑल दीज थिंग्स एंड दिस इज एल्काइन। एल्काइन कंटेन्स 3 bonds, एल्कीन कंटेन्स 2 bonds, alkane contains single bond, okay, it is saturated one. ये सब जो है alkenes and alkynes are unsaturated compounds, ठीक है। Now again this alkyl group is again divided into tertiary carbon, secondary carbon, primary carbon and isoalkyl and neoalkyl, ठीक है। अब ये tertiary carbon, secondary carbon तो आप जानते ही हैं। Now what is isoalkyl and neoalkyl? isoalkyl को उन्हें बोलते हैं जिसमें one of the end is group is CH2, wait a minute, okay, one of the end group is CH2 and the remaining part is this, ऐसा substituent जो होता है ना, so that you can say for example अगर मैं definition बताऊँ, it is an alkyl group containing one terminal CH2, ठीक है। यहाँ पे one terminal CH2 group होता है and another जो group होगा वो ये होगा आपका, ये जो मैंने white mark किया है ये वाला, ये आपका एक और ग्रुप होगा। so such a group called is isoalkyl groups, isoalkyl group। Now what is new alkyl? New alkyl का अगर डेफिनेशन देखें, इसमें one of the end is CH2 group, ठीक है। आपका एक एंड होगा, यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे एक CH2 ग्रुप होगा, one of the end is CH2 group and the another end will contain this yellow part, yellow पेन से जो मैंने लिखा ना, so this is this pen, so this is, अगर ये दो ऐसे प्रेजेंट है तो इट इज कॉल्ड एज न्यू एल्काइल। यू कैन फॉर से कि ये जो कार्बन है मतलब ऐसा कार्बन जिसके आसपास तीनों मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है and उसके and एक one of the carbon is CH2, so such a compound is called as new alkyl group. So for example neopentane, ठीक है। अगर आप neopentane का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा तो उसमें क्या है,
ये आपका नियोपेंटेन है. सो दिस कंपाउंड वॉट एवर इट इज योर, अगर CH3 होता तो ये आपका नियोपेंटेन होता. ठीक है, दिस इज योर नियोपेंटेन. और भी बहुत सारे कार्बन हैं. ठीक है, यू कैन गो फॉर नियोहेक्सेन, यू कैन गो फॉर नियोहेप्टेन एंड ऑल दोस थिंग्स. ट्राई दी स्ट्रक्चर्स आउट. ठीक है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, खुद से लिखोगे नहीं, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा. नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? देखिए, कुछ रूल्स होते हैं. जब भी आपको ये मतलब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसका नाम देने के मतलब कुछ रूल्स होते हैं. रूल्स नहीं, बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कम्युनिटी, डिपेंडिंग ऑन द रिलीजन, वो लोग अपना अपना नाम देते हैं. ठीक है, सो हियर ऑल्सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देयर आर सम रूल्स, सेट ऑफ रूल्स. वो कौन से रूल्स हैं? वर्ड रूट होता है, सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है. सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है. ओके, एंड ओके, सो एंड उसका जो एंड ऑल दीज थिंग्स आर प्लेस्ड इन दिस मैनर. सबसे पहले आपको लोकेंट मतलब सब्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट होता है आपका पेरेंट चेन के ऊपर, जो सब्स्टिट्यूएंट मैं आपको आगे बताऊंगा व्हाट इज सब्स्टिट्यूएंट, व्हाट इज पेरेंट चेन, ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट ये लोकेंट का होता है. फिर उसका प्रीफिक्स, उसका रूट मतलब आपका ये पेरेंट नेम ऑफ दैट कंपाउंड. फिर अगर फिर से कोई सब्स्टिट्यूएंट है सेकेंडरी वाला, फिर उसके बाद सफिक्स, मेन, फंक्शनल ग्रुप अगर कोई प्रेजेंट है. सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स. नाउ कमिंग टू द नेमिंग ऑफ अनब्रांच्ड एल्केन्स. अनब्रांच मतलब ऐसे एल्केन्स जिसमें कोई ब्रांचिंग ना हो, मतलब सीधा ऐसा कोई कंपाउंड है, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है. ब्रांचिंग मतलब यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे एक कार्बन पे कोई सब्सटेंट प्रेजेंट हो यहाँ. ठीक है, यहाँ OH प्रेजेंट हो सकता था, यहाँ शायद एक और कोई ग्रुप हो सकता था, यहाँ पे कुछ और ग्रुप हो सकता था, कुछ भी हो सकता था. सो दिस आर ब्रांच्ड चेन्स. लेकिन अनब्रांच मतलब क्या होगा? जहाँ पे कोई ऐसी ब्रांचिंग नहीं होगी. इट विल बी स्ट्रेट सिंपल चेन. सो इन दैट केस द नेम्स ऑफ द अनब्रांच्ड एल्केन्स आर डिवाइडेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स. मतलब ये जो है नाम्स हैं वो उनके ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं. एंड द कार्बन एटम्स प्रेजेंट एंड दीज आर गिवन ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट. ठीक है, जितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं उस टाइप से नेम दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल, एक कार्बन है तो उसको मीथेन बोलेंगे, 2 कार्बन है इथेन बोलेंगे, 3 कार्बन है प्रोपेन बोलेंगे, 4 कार्बन है उसको ब्यूटेन बोलेंगे, 5 कार्बन है पेंटेन बोलेंगे. अगर 6 प्रेजेंट है then it will be called as hexane, and अगर 7 present है then it will be called as heptane. now अगर समझ लीजिए आपको याद नहीं आ रहा था, so you can just remember that my English professor bought paper. ठीक है, इस तरह से याद रख लीजिए. मैंने भी इसी तरह से एक न्यूमोनिक बना लिया था. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन. फॉर माई इज फॉर मीथेन, इथेन का इंग्लिश, प्रोपेन का प्रोफेसर, ब्यूटेन का बॉट, पेंटेन का पेपर. हेक्सेन हेप्टेन हम 10 तक बना सकते हैं. ठीक है, अगर किसी को मालूम नहीं है कि व्हाट इट इज 8 का क्या बोलते हैं, 8 को बोलेंगे ऑक्टेन, 8 को बोलेंगे ऑक्टेन, एंड फिर 9 को बोलेंगे अनोनेन, फिर 10 को डेकेन. ठीक है, सो 10 तक ऐसे है, बहुत सारे होते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है, practice is the best policy you can right now like give in the student life only. ठीक है, so that you don't do any mistakes in your exams. now coming to the branched alkenes, so this is the trick where IUPAC comes. ठीक है, इससे पहले वाला जो था वो तो बहुत सिंपल था. ठीक है, उसमें कोई ब्रांचिंग थी नहीं, तो सीधा डायरेक्ट जैसे जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होते थे उतने उस हिसाब से आप क्या करते थे, नाम दे देते. लेकिन यहाँ पे जब आप ब्रांच इसमें आते हैं, एल्केन्स में आते हैं, तो देयर आर सम रूल्स. ठीक है, देयर आर 5 to 6 रूल्स. उस रूल्स के बेसिस पे ही आप नाम देंगे. फॉर एग्जांपल, सबसे पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन रूल. ये क्या कहता है? सबसे पहले आपको ऐसा कोई ढूंढना है जिसमें लॉन्गेस्ट चेन हो. ठीक है, आपको ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना है जिसमें लॉन्गेस्ट चेन हो. लॉन्गेस्ट चेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स किस स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं, मतलब जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स मिलेंगे उस स्ट्रक्चर को हम पकड़ना पड़ेगा. तो सबसे पहले देखते हैं क्या है. 1 2 3 4 5 6. अगर मैं ऐसे आऊँ, इन सबको पकड़ूँ तो कितने कार्बन्स आ रहे हैं? ये 5 और ये 6 कार्बन्स आ रहे हैं. ठीक है, अभी ऐसे में अगर आ रहे हैं तो 6 आ रहे हैं. लेकिन अगर मैं ऐसे ही 5 से कंटिन्यू करते जाऊँ, 5 6 7, तो मेरे को कितने मिल रहे हैं? 7 मिल रहे हैं. सो देयरफॉर 6 इज ग्रेटर देन 7. तो इसीलिए हम 7 is greater than 6. 7 is greater than 6, therefore we will consider this as a parent chain. Now there is a trick one more. अब आप नॉमेनक्लेचर कहाँ से करोगे? लेफ्ट टू राइट करोगे या राइट टू लेफ्ट करोगे? ठीक है, वो अगले वाले रूल में बताऊंगा. एक्चुअली जो नॉमेनक्लेचर मैंने दिया है 1 2 3 नंबरिंग, इट इज रॉन्ग. एक्चुअली द नंबरिंग शुड बी लाइक दिस: 1 2 3 4 5 6 7.
सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन दैट यू कैन फाइंड इन दिस स्ट्रक्चर. सो हमें यही कंसिडर करना पड़ेगा. एंड वाई, मतलब अब आप पूछोगे कि सर मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ क्यों गया, लेफ्ट से राइट की तरफ क्यों नहीं है, वो नेक्स्ट वाले रूल में बताऊंगा कि ऐसे क्यों. नाउ अब इस वाले कार्बन स्ट्रक्चर में देखते हैं. अब हम इसमें देखेंगे कि कैसा मिलेगा लॉन्गेस्ट चेन. 1 2 3 4 5. वन पॉसिबिलिटी ये थी कि 5 एटम्स जो कार्बन एटम्स हैं वो स्ट्रेट चेन लाइन में जुड़े हुए हैं, वही पॉसिबिलिटी होगी. वन मोर पॉसिबिलिटी कैन बी दिस 4, दिस 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश. मतलब यहाँ पे 8 is greater than 5, therefore we will consider this as a longest chain. So this will be considered as the longest chain. ठीक है. सो ये तो आपको सिर्फ पता हो रहा है कि मतलब बता रहा हूँ कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है. नेक्स्ट में जैसे जैसे आगे जाएंगे मैं नॉमेनक्लेचर करता जाऊँगा, मतलब नाम लिखते जाऊँगा उस कंपाउंड का. ठीक है. अगर फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे होगा 3 मिथाइल, कितने 7 हैं, हेप्टेन सैचुरेटेड है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. सो देयरफॉर एन दैट इज योर एल्केन मॉलिक्यूल. अगेन यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स हैं. सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन में पड़ा है, 4. सो 4 मिथाइल ऑक्टेन. दिस इज द नेम ऑफ योर मॉलिक्यूल. नाउ लोएस्ट नंबर ऑफ रूल और लोएस्ट सम रूल. लोएस्ट सम रूल का क्या कहता है कि आपका जो पेरेंट चेन है इस तरह से नंबर करना होगा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स गेट द लोएस्ट नंबर. ठीक है. जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं चाहे यहाँ लेफ्ट से आऊँ राइट से आऊँ, नंबरिंग तो 7 ही मिल रही थी कार्बन को, तो फिर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ क्यों प्रेफर किया, बिकॉज ऑफ दिस रूल. दिस रूल स्टेट्स दैट द पेरेंट चेन शुड बी नंबर इन सच अ वे दैट उसका जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे कितने एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है एंड पेरेंट चेन सबसे पहले देखते हैं कौन सा बड़ा बनेगा. 1 2 3 ये मिल गया. एक यहाँ पे हो सकता है 3 डैश, ये हो गया 4 डैश, ये हो गया 5 डैश. डैश इज नथिंग बट मैं आपको डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ 3 को इस 3 से, इस 3 और इस 3 को डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ मैं. सो देयरफॉर आई एम रिप्रेजेंटिंग डैश. डैश इज नथिंग बट आप ऐसे मत लिख देना. ठीक है. डैश वैश मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि चेंज कौन सा है. अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो मैं हटा ही देता हूँ. ठीक है. Now this is ये जो straight chain है. ठीक है. This is the longest one. This is the longest one. So therefore we will consider this. अब जैसे कि ये रूल बताया कि जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो किस कार्बन पर प्रेजेंट है, वो कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है. ठीक है. सो ये हो गया एक नंबरिंग सिस्टम. अगर मैं ऐसे करूं तो 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे भी 5 एटम्स मिल रहे हैं. तो क्या ये पहले वाला सही है, दूसरा वाला सही है? अकॉर्डिंग टू रूल जो पहले वाला नंबरिंग था दैट इज योर सब्स्टिट्यूएंट इज गेटिंग अ लोअर नंबर, दैट वन इज द करेक्ट. क्यों? देखो सेकंड नंबर अगर हम सेकंड वे से करेंगे दैट इज फ्रॉम गोइंग फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, फोर्थ वाला आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है. ठीक है. ये फोर्थ वाले पोजीशन पर प्रेजेंट है. लेकिन रूल क्या कहता है, लोएस्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट को मिलना चाहिए और लोएस्ट नंबर यहाँ पे अपना कौन सा है 2. देयरफॉर 2 विल बी प्रिफर्ड, मतलब आपका ये नंबरिंग विल बी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नाउ अनदर रूल एग्जाम्पल. ठीक है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक चेन है. देखते हैं कौन सा लंबा सबसे बड़ा चेन है. 1 2 3 4 5 6. ये एक चेन मिल गया. यहाँ पे 5 6. अरे ये तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे तो दोनों तरफ से 6 6 मिल रहा है, तो कौन सा कंसिडर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि देखो यहाँ पे फोर्थ, अगर आप ऐसे जाते स्ट्रेट, अगर आप ऐसे जाते तो फोर्थ पे आपको सब्स्टिट्यूएंट मिला है, और अगर आप ऐसे जाओगे तो यहाँ पे फोर्थ पे भी सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है. सो दिस नेमिंग विल नॉट अल्टर एनीथिंग. सो देयरफॉर ये एक हो गया तरीका. लेकिन एक और तरीका है. 1 2 3 4 5 6 3 4 5. देखा अगर आप ऐसे आते फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपको 6 मिल रहे हैं, चाहे आप स्ट्रेट जाओ या 4 से नीचे आ जाओ तो आपको 6 मिल रहा है. लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, सॉरी राइट टू लेफ्ट जाओगे, that is you are moving from this side, you in the straight chain you are getting 6 molecules, 6 carbon atoms. और लेकिन अगर आप ऐसे 3 से नीचे मुड़ते हैं तो आपको सिर्फ 5 ही मिल रहे हैं. सो देयरफॉर हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन रूल देखना है. दैट इज लॉन्गेस्ट मतलब ये वाला 6 वाला. कौन सा बड़ा है, ये वाला. ठीक है. सो दिस 6 कंटेनिंग चेन इज आवर बिगेस्ट वन. एंड देन वहाँ पे उसके बाद हमें सब्स्टिट्यूएंट देखना है, सब्स्टिट्यूएंट किस एटम पे प्रेजेंट है. सो दैट इज थर्ड. इससे पहले किस पे आ रहा था, फोर्थ कार्बन पे आ रहा था, बट अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल द थर्ड शुड बी प्रिफर्ड. सो देयरफॉर दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग.
लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल, इट माइट बी लुकिंग अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब आप इसको नंबरिंग करके मुझे बताओ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लेट मी नो कि कौन सा आएगा इसमें। आई विल वेट फॉर योर आंसर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सम, इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, लोएस्ट सम रूल। अब हमें एक और तरीका है कि अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तब उस एट टाइम हमें जो जहाँ जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है, उन सब्स्टिट्यूएंट पोजीशंस को एडिशन करना होगा। एडिशन ऑफ दोज पोजीशंस, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, वी आर एडिंग दो सब्स्टिट्यूएंट्स। नाउ फ्रॉम गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी आर गेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स एट थर्ड, fourth and fifth, and the sum of these three things will be 5 plus 4 is equals to 9, 9 plus 3 is equals to 12. Okay, from left to right we are getting the sum as what, 12. Okay, now let's see from right to left क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7, here also 5 4 and 3, again the sum will 12 only. So what should be considered in such cases? There is another rule which state that ki you should go with what, alphabetical order। ठीक है, alphabetical order of substituent। ठीक है, so वो next rule में है क्या, मैंने लिखा है क्या, एक मिनट, हाँ वो नेक्स्ट रूल में मैं ले लिया, वो आपको बता दूंगा। ठीक है, सो कहाँ गया, ये हो गया 5, ये हो गया का कितना 4, ये हो गया 3। नाउ अब यहाँ पे पेरेंट चेन हम लोगों ने देखा कि इस तरफ से भी जाओ 7 ही मिल रहा है, इस तरफ से राइट से लेफ्ट जाओ तो भी 7 मिल रहा है, एंड लेफ्ट से राइट जाओ तो भी 7 मिल रहा है। एंड इन तीनों का जो जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उनका सम करने पे दोनों का राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट दोनों का 12 आ रहा है। सो देयरफॉर एनीथिंग आप कुछ भी कंसिडर कर लो मिल जाए, लेकिन एक और कंडीशन है, वो कंडीशन हम नेक्स्ट रूल में पढ़ेंगे। नो वो ये वाला रूल है। ठीक है, लेट आई विल कम हियर। ओके, मैं आपको बताता हूँ ये वाला। नेम ऑफ द ब्रांच्ड चेन एल्केन, द सब्स्टिट्यूएंट नेम एंड द पेरेंट एल्केन आर जॉइंड इन वन वर्ड एंड देयर इज हाइफन बिटवीन द नंबर एंड द there is no hyphen, there is a hyphen between the number and the substituent, yeah sorry, okay, so what does this this rule says that कि आपका जो parent name है, that is यहाँ पे इस केस में हेक्सेन, अगर नॉमेनक्लेचर करके देखेंगे तो अगर पेरेंट चेन कौन सा निकलेगा, ये वाला 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हेक्सेन मतलब 6 मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट है। नंबरिंग मैंने कैसे किया, सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिलना चाहिए। यस, अगर मैं यहाँ से लेफ्ट से राइट आता तो शायद इसको 5 नंबर मिलता, सो विच इज अकॉर्डिंग टू द रूल इज नॉट करेक्ट। सो देयरफॉर 2 मिथाइल दैट इज योर पोजीशन। आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले 2 पोजीशन ऑफ दैट सब्स्टिट्यूएंट, कौन से नंबर पे वो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दैट इज योर नंबर 2 मिथाइल, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, दैट इज मीथेन। योर CH4 इज योर मीथेन, CH3 one less hydrogen is called as methyl. Okay, remember that. अगर आपका इथेन होता that is your CH3 अगर उसमें से आपका which is called as CH3 can be written as C2H6। ठीक है, it is called as ethane। अगर मैं इसकी जगह C2H5 लिखता तो it would have been called as ethyl। एक लेस हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, सो एक लेस हाइड्रोजन होने की वजह से N हट के I ला जाएगा, YL। ओके, ANE की जगह YL ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर, आप आगे जैसे जैसे आगे सॉल्व करोगे मैं आपको आगे और सॉल्व करूंगा क्वेश्चंस। ठीक है, सो यू विल गेट टू नो। तो नंबरिंग और उस सब्स्टिट्यूएंट के बीच में हाइफन लिखना होना जरूरी होना चाहिए इन वन वर्ड, एंड देयर इज अ हाइफन बिटवीन द नंबर एंड द सब्स्टिट्यूएंट, ऐसा हाइफन होना चाहिए। सो दैट वन, दिस इज करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग। डोंट वरी, आपको अगर ऐसा डाउट आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो आपको रूल्स याद हो जाएंगे एंड यू कैन नेम द कंपाउंड्स वेरी इजीली। नाउ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे कि मैंने पहले वाले में बताया था कि यहाँ पे सब्सटेंस बहुत सारे प्रेजेंट है, तो कौन सा वाला दिया जाए, तो यहाँ पे इन दैट केस शुड बी गिवन ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फर्स्ट प्रेफरेंस बी, preference of numbering is also an alphabetical order and writing of the name is also on alphabetical order। ठीक है, so that can be written as, अब देखिए, so नंबरिंग करके देखते हैं 1 2
3, 4, 5, 6. Now at 2 carbon we have methyl, at 4 carbon we have ethyl. ठीक है, अब मिथाइल का M और इथाइल का E, अगर इसमें दोनों में देखें तो E इज कम्स फर्स्ट देन M. ठीक है, अगर ABCD में देखो E सबसे पहले आता है एज कंपेयर टू M. सो देयरफॉर आपका जो नंबरिंग है वो सबसे पहले इथाइल को मिलना चाहिए, दैट इज सबसे छोटा नंबर आपको इथाइल को मिलना चाहिए. सो देयरफॉर द नंबरिंग शुड बी लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो देयरफॉर अगर मैं इस कंपाउंड का नाम लिखूंगा सो इट विल बी 3 ethyl 5 methyl, दैट इज पेरेंट चेन, लास्ट में पेरेंट चेन, दैट इज योर हेक्सेन. ठीक है, आपको पता चला कैसे मैंने हाइफन डाला है बीच में. हाइफन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश द सब्सटेंट का नंबरिंग एंड द नेम ऑफ दैट सब्सटेंट. अगर पहले वाले एग्जांपल में जाऊं, ठीक है, अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर दूं तो कैसे आएगा, लेट अस सी. पहले तो देखो राइट एंड लेफ्ट से जाओ तो 7 ही मिल रहे थे, नंबरिंग ऑफ सब्सटेंट्स का पोजीशन भी सेम ही मिल रहा था. सो देयरफॉर डजंट मैटर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब देखो यहाँ पे सब्सटेंट सेम ही है, ये भी मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो डजंट मैटर कि आप पहले कौन सा लिखो. लेकिन यहाँ पे देखो जब ऐसे सेम हो गया ना तो एट दैट टाइम आपको क्या करना है, जो सबसे पहले जिस हिसाब से नंबरिंग है उस हिसाब से लिख लो. 3 पे कितने मिथाइल है, दो मिथाइल है. सिर्फ फॉर देयरफॉर 2 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डाई से रिप्रेजेंट करते हैं. 3 को हम ट्राई से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, एंड 4 को टेट्रा से रिप्रेजेंट करते हैं. सो देयरफॉर यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज योर 2 सब्सटेंट आर प्रेजेंट, देयरफॉर इट विल बी कॉल्ड एज डाई मिथाइल. 3 ड्राई मिथाइल, 4, 5 पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, अगर सेम ग्रुप्स डिफरेंट पोजीशन पे हैं तो उनका जो नंबरिंग है वो एक साथ लिखा जा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है. देखो 4th पे भी मिथाइल ग्रुप है, 5th पे भी मिथाइल ग्रुप है, इसलिए मैंने 4th और 5th का मिथाइल ग्रुप एक साथ लिखा है. 4, 5 डैश मिथाइल कितना आपका 7 है, हेप्टेन. दिस इज योर नेम ऑफ दिस कंपाउंड. नाउ नंबरिंग ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स एट इक्विवेलेंट पोजीशंस. ठीक है, देखते हैं आप ये क्या कहता है. इफ 2 अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन द नंबरिंग इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी. हाँ सेम इससे पहले वाला जो मैंने बताया था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले में वो सबसे पहले दिखते हैं. इफ 2 अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम पोजीशन द नंबरिंग इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर. यस, यहाँ पे भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही दोगे. क्यों, देखो यहाँ 1, 2 ये वाला सेम ही है ना. अच्छा ये वाला और ये वाला पहले वाला मॉलिक्यूल जो लिखा था मैंने वो सेम ही है. ठीक है, सो सेम रूल, it just got repeated. Now naming of some alkyl groups at different positions. तो यहाँ पे आप कैसे नॉमेनक्लेचर दोगे, 1, 2, 3, 4 या फिर 1, 2, 3, 4. यहाँ पे भी आ जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 3 and 3 पे सेम है. अगेन यहाँ पे भी आप नंबरिंग करके देखो 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, यहाँ पे भी 5 आ सकता था, यहाँ पे भी 5 आ सकता था. सो हम लोग एक स्ट्रेट चेन ही पकड़ लेते हैं. ठीक है, सो दिस विल बी द फैक्टर. आप नाम लिख के बताओ इसका क्या होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. A इज इक्वल्स टू दिस एंड B इज इक्वल्स टू दिस. आप मुझे कमेंट सेक्शन में A और B का नाम लिख के बताओगे. नाउ रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ सब्सटेंट्स. तो इसमें क्या होगा, इसमें ना ऐसे कुछ रूल्स बने होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले ना आपको ना क्या करना है कि एक पेरेंट चेन ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, पेरेंट चेन कैसे ढूंढोगे, नो रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ सब्सटेंट. ठीक है, अब ये रूल क्या करता है, इफ अ कंपाउंड हैव 2 और मोर चेन्स ऑफ सेम लेंथ द पेरेंट चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ सब्सटेंट इज कंसिडर. ठीक है, एक ऐसा, ठीक है, कंपाउंड हैविंग 2 और मोर चेन्स, अगर 2 से ज़्यादा पेरेंट चेन है तो उस चेन को कंसिडर करते हैं जिसपे ग्रेटर नंबर ऑफ सब्सटेंट प्रेजेंट है. ठीक है, सो ग्रेटर ऑफ नंबर्स ऑफ सब्सटेंट किस पे प्रेजेंट है, सबसे पहले हम पेरेंट नेम डाल के देखते हैं. ठीक है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 5, 6 आ रहे हैं और यहाँ पे 4,
यहाँ पे ये 5 आ रहा है। ओके, सो ठीक, ऐसे 6 आ रहे हैं। अगर मैं ऐसे करता हूँ 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। ओके, एक मिनट रुको, मैं इसको अच्छे से लिख के बता दूँ। 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 आ रहे हैं। क्या ऐसे हो सकता है 1 2 3 4 5 6? देखिए, अगर आप इस वाले पेरेंट चेन को कंसिडर करोगे तो यहाँ पे 6 मिल रहे हैं, और अगर आप ऐसे जाओगे तो ऐसे में भी आपको कितने मिल रहे हैं? 6 मिल रहे हैं। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है? द रूल सेज दैट दैट पेरेंट शुड बी सेलेक्टेड इन विच नंबर ऑफ सब्सटेंट्स आर मोर। ठीक है, अगर आप मैं इस वाले फर्स्ट वाले नॉमेनक्लेचर को देखो, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ कंफ्यूजन। ठीक है, ये पहले वाला नॉमेनक्लेचर में देखो, नंबरिंग देखो, यहाँ पे सब्सटेंट सिर्फ थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब थर्ड वाले कार्बन पे ही एक सब्सटेंट प्रेजेंट है। इसको एक वन ग्रुप पकड़ लो, इसको एक सिंगल एंटिटी पकड़ लो। सो दिस एंटिटी इज प्रेजेंट ओनली ऑन थर्ड कार्बन, बट व्हेन आई गिव द नंबरिंग इन दिस फैशन, व्हेन आई गिव नंबरिंग इन दिस फैशन 1 2 3 4 5, सॉरी दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। ठीक है, जब मैं इस पे देता हूँ तो ये मुझे सब्सटेंट्स दो जगह पे मिल रहा है। कौन से जगह पे? एक फोर्थ जगह पे, फोर्थ वाले पोजीशन पे मिल रहा है, और एक फिफ्थ वाले पोजीशन पे मिल रहा है। और अकॉर्डिंग टू रूल हमें उस पेरेंट चेन को कंसिडर करना पड़ेगा जिस पेरेंट चेन ग्रुप पे नंबर ऑफ सब्सटेंट ग्रुप ज़्यादा है। मतलब अगर मैं इस तरह से कंसिडर करूंगा तो मुझे फोर्थ पे एक सब्सटेंट मिल रहा है एंड फिफ्थ वाले पोजीशन पे एक मिल रहा है, देयरफॉर आई एम गेटिंग 2 सब्सटेंट्स। लेकिन अगर मैं पहले वाले पे देखूंगा तो एक ही सब्सटेंट मिल रहा था, वो भी एट थर्ड पोजीशन। और यहाँ पे कौन से पे मिल रहा है? मुझे फोर्थ पे मिल रहा है एंड एक फिफ्थ पे मिल रहा है, और लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक थर्ड पोजीशन पे अकेला ही मिल रहा है। देयरफॉर हमारा जो सेकंड नंबरिंग सिस्टम है जो इस तरह से आ रहा है, हमें ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो होप यू गॉट इट। अगर यहाँ पे देखो ये वाला भी सेम है क्या? हाँ, ये वाला भी दोनों सेम है। सो डोंट नो, मैंने शायद दूसरा लिखा था, मैंने दूसरे लिखने की जगह मैंने सेम लिख दिया। ओके सॉरी। ठीक है, सो हमें ये वाला ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ नंबरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट्स ऐसा हो सकता है कि आपके जो सब्सटेंट प्रेजेंट हो, सब्सटेंट का भी एक और सब्सटेंट हो सकता है, जैसे कि इस तरह से। अभी देखो, इसका एक सब्सटेंट प्रेजेंट है और इस सब्सटेंट का एक और सब्सटेंट प्रेजेंट है। सो एट दैट टाइम हमें कैसे नाम लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पेरेंट चेन को ढूंढते हैं। ठीक है, सो पेरेंट चेन कौन सा होता है देखते हैं। ये चेन मुझे बड़ा देखना है, सो पहले इसका नंबरिंग देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे तो 9 हो रहे हैं, सो 5 6 7 8, ऐसे 8 हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे जाने पे जस्ट अ सेकेंड मैं चार्ज लगा दूँ। ओके, अगर मैं ऐसे जाऊंगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मुझे 9 कार्बन्स मिल रहे हैं, एंड अगर फ्रॉम लेफ्ट से फिफ्थ कार्बन से नीचे मुड़ूंगा तो मेरे को 8 मिल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द वन थिंग। नाउ मैं नंबरिंग इसको इस तरह से करके देखता हूँ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 ही मिल रहे हैं, एंड अगेन 6 7 8 9। सो देयरफॉर आवर पेरेंट चेन इज नन अदर देन दिस वन। ठीक है, यही आपका पेरेंट चेन है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो 9 मतलब कौन सा होगा? नॉन इन। ठीक है, ये आपका नॉन इन होगा। 9। अब इस ग्रुप को कैसे नाम दोगे? हमें तो सिर्फ मतलब सिंगल ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है तो उसका नाम करना इजी पता था, लेकिन जब ऐसे प्रेजेंट होंगे तो एट दैट टाइम आपको ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ नॉन इन लिख लेता हूँ लास्ट में। ठीक है, नॉन इन हो गया। नाउ अब किस पोजीशन पे आपका सब्सटेंट प्रेजेंट है? फिफ्थ पोजीशन पे सब्सटेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिखो, देन पुट अ हाइफन। नाउ नेम दिस सब्सटेंट। इसमें भी आपको एक पेरेंट चेन ढूंढना पड़ेगा। सो पेरेंट चेन विल बी लाइक दिस, और नंबरिंग उसी जगह से स्टार्ट होगी जहाँ पे सब्सटेंट प्रेजेंट है। सो देयरफॉर यहाँ पे नंबरिंग इसी से करोगे। इसका नहीं, ये नहीं कि सर अरे नहीं मैं यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करूँगा, यहाँ पे 4 मिल रहा, नहीं, ये रॉन्ग होगा। जो सब्सटेंट आपका आपके मेन पेरेंट चेन से जुड़ा है उसी को आपको नाम देना पड़ेगा। सो देयरफॉर 1 2 3। ओके, सो इस तरह से दोगे। सो देयरफॉर 3 मतलब प्रोपाइल। ना प्रोपाइल क्यों, मैंने प्रोपेन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है। अगर CH3 होता तो मैं CH3 या CH4 होता तो मैं प्रोपेन लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन CH4 से कम है, देयरफॉर यहाँ पे प्रोपाइल लिखा है मैंने। सो एट फर्स्ट आई विल बी राइटिंग प्रोपाइल ऑन
ठीक है। प्रोपाइल, तो प्रोपाइल का पेरेंट चेन ढूंढ लिया, तो एक मिनट यहाँ थोड़ा बड़ा लिख लेगा, ठीक है, ये प्रोपाइल हो गया। नाउ अब 1 and 2 पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, देयरफॉर आई विल राइट एज 1,2 मिथाइल डाइमिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल, ठीक है। यहाँ पे हाइफन आ गया आपका, ये क्लोज दिस ब्रैकेट एंड 5th पोजीशन पे आपका ग्रुप प्रेजेंट है, देयरफॉर द टोटल नेम ऑफ दिस ग्रुप विल बी 5-1,2 ब्रैकेट के अंदर 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल नॉन है। सो दिस इज द वे यू नंबर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट्स जिसमें सब्सटेंट्स का भी सब्सटेंट प्रेजेंट हो, एट दैट केस यू गिव नेमिंग इन दिस मैनर, ओके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड चेन, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। आई विल बी सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस, ठीक है। काम करते हैं, कल नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, नॉट इजी क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा, एंड सून आई विल बी चेंजिंग द नेम फ्रॉम केम सॉर्सरर टू केम विजार्ड, ओके। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है सॉर्सरर नाम चेंज करते हुए, बट आई डोंट नो व्हाट टू डू क्योंकि बहुत सारे लोगों को नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, सो टू फॉर एवरीवन्स लाइक कन्वीनियंस और रीच कर सकूँ मैं इजीली सबके साथ, सो देयरफॉर आई एम चेंजिंग द नेम। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू एंड जय हिंद।